नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 16वें वित्त आयोग की टीम ने उत्तराखंड दौरे के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों से महत्वपूर्ण बैठक की है। तो वहीं आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया के नेतृत्व में हुई बैठक में टैक्स वितरण, राज्य की राजस्व मांग और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। तो आपको बता दें तो वहीं इस दौरान चर्चा में सीएम धामी भी मौजूद रहे और उत्तराखंड में 16वें वित्त आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया ने प्रेस को ब्रीफ किया और इस दौरान क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना। Central government also levies certain cesses and surcharges. Now, cesses and surcharges go directly in toto to the central government. But the remaining large part of the taxes, including the income tax, the CGST, the share of the central government in the GST, corporation tax, custom duties, these are all become part of what is called the divisible pool. This divisible pool is shared between the central government and the state governments. This is where the Finance Commission comes in. So every 5 years, a Finance Commission is appointed, and it is asked to make recommendations on how this divisible pool should be divided between the central government and the state government. And then the portion that is divided, that is given, that is devolved to the state governments is further to be subdivided among the 28 states of the country. And so the Finance Commission is charged with recommending both how the overall divisible pool should be divided between center and states, and then whatever is the state share in the divisible pool, how should that be divided among the states. Finance Commission is also asked to make recommendations on some of the grants. These are grants that come not out of the divisible pool, but they come out of the budget of the central government, or what is called the Consolidated Fund of India. These are some of these grants are local body grants to panchayats, and grants to the urban local bodies, the municipalities and other municipal bodies. And then there are grants also for disaster relief. These are also going to come. These also come from the Consolidated Fund of India. Occasionally, or sometimes, the Finance Commissions also make some sector-specific grants, maybe related to health, related to education, things like that, and sometimes also state-specific grants, which may be grants to a particular state. So those are the decisions, or those are the recommendations that the Finance Commission makes. Generally, the tradition has been that at least on matters of devolution, meaning the division of the revenues between center and states, and the division among the states, that is generally honored. The recommendations of the commissioner have been all for the last 15 commissions. This is our commission is the 16th. So the recommendations of all the past 15 commissions have been honored by the central government and the parliament, and they have been implemented. Likewise on local body grants and the disaster relief grants also, they have been in the past always accepted. This commission was appointed, it was it was announced in the towards the end of the year 23, but we were appointed in the early part of the 2024, but we started functioning, as a commission in February or March. But then soon after, the model code of conduct kicked in because of the parliamentary elections that were forthcoming. तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया के नेतृत्व में आयोग के प्रतिनिधि मंडल का स्वागत और अभिनंदन किया।
आपको बता दें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया के नेतृत्व वाली इस टीम में आयोग सदस्य एनी जॉर्ज, मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष, आयोग के सचिव ऋत्विक पांडे, तो वहीं संयुक्त सचिव के मिश्रा, संयुक्त निदेशक पी अमृतवर्षिणी उपस्थित थे। तो अगली खबर की रुख करेंगे, जहां राजधानी देहरादून के निजी होटल में यूनेस्को क्लब दून वैली ईस्ट द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें वहीं जिसमें मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा 51 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किया गया। तो आपको बता दें इस दौरान छात्रवृत्ति के साथ सभी छात्रवृत्ति धारकों को स्कूल बैग, स्टेशनरी और भोजन पैकेट भी दिए गए। तो वहीं अध्यक्ष ने पिछले वर्ष के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें सभी परियोजनाओं को पूरा किया गया। तो ये आपको बता दें कार्यक्रम में बीजेपी के कई दिग्गज नेता और सैकड़ों की संख्या में सदस्य और विद्यार्थी के रिश्तेदार भी उपस्थित रहे। क्लब दून वैली ईस्ट पिछले कई वर्षों से, क्योंकि मुझे भी पिछले 22-23 वर्षों से इनके कार्यक्रमों में आने का अवसर मिला, और जिस तरह से इन लोगों के अंदर समाज में ये सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े व्यापार से जुड़े हुए लोग, जिस तरह समाज में गरीब बच्चों की मदद करना, ब्लड डोनेशन कैंप के साथ हेल्थ कैंप लगाना, अपने आपस में एक जो क्लब के मेंबर्स हैं उनके बीच में बड़ा सौहार्दपूर्ण संवाद है, उनके बीच में आपस में मेलजोल रहे, इन तमाम चीज़ों को लेकर मनोरंजन से लेके आम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता से लेकर देश के भविष्य के जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, इन बच्चों को, जो निर्बल वर्ग के बच्चे हैं, उनको किस तरह से मदद देकर अपने बच्चों को भी इंस्पायर करने का काम करते हैं, पर पुरस्कार करके कि बच्चे और आगे बढ़ने की भावना उसके अंदर पैदा हो। तो एक बहुत अच्छा काम, और आज आवश्यकता है कि इस तरह के काम करके समाज को प्रेरणा देने का काम किया जाए, और यूनेस्को क्लब को मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। कई वर्षों से, क्योंकि फाउंडर मेंबर सुरेश गोयल जी इसके थे, और मैं आज देख रहा हूँ कि आज दूसरी जनरेशन इन्हीं लोगों की दूसरी जनरेशन में भी इसमें भाग लेना प्रारंभ किया। तो एक ये अनएंडिंग जो कार्यक्रम में चला रहे हैं, निश्चित रूप से ये लोगों को लगातार प्रेरणा देने का काम करेंगे। हर साल हम लोग अपना एनुअल फंक्शन मनाते हैं। इसमें हम 51 बच्चों को, 51 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, और जो मध्यम वर्ग के बच्चे, हमारे गरीब वर्ग के बच्चे आते हैं, जैसे कोई धोबी है, कोई वो है, उन सबको देते हैं। इसमें हम थोड़ा कैश देते हैं, प्लस एक बैग देते हैं, उसमें पेंसिल बॉक्स देते हैं, उसमें फूड आइटम देते हैं। ये हर साल हम ये लोग ये करते हैं। फिर हम लोग ट्री प्लांटेशन भी करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस कैंप भी करते हैं, और काफ़ी चीज़ें कुछ ना कुछ हर महीने कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यूनेस्को क्लब का ये हमारा एक वार्षिक प्रोग्राम है, जिसमें हम 51 बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं। हमारा उद्देश्य बहुत सिंपल सा है कि इन बच्चों को एक अच्छा आगे मार्गदर्शन मिले, इन बच्चों की जो प्रतिभा है उनको हम पहचानें, और इनको आगे बढ़ते रहने के लिए एक मोटिवेशन, एक इंकरेजमेंट दे सकें। ये एक छोटी सी कोशिश है, और हम लोग ये 35 साल से करते हुए आए हैं। तो अगली खबर की रुख करेंगे, जहां हरिद्वार के एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने सोमवार को कोतवाली ज्वालापुर का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर की साफ सफाई, भवन की स्थिति, मेंटेनेंस और अभिलेखों की जांच भी की। आपको बता दें उन्होंने अभिलेखों को समय समय पर अपडेट रखने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं एसपी सिटी ने कुर्की वारंटों के त्वरित निस्तारण, लापता हिस्ट्री शीटरों की तलाश, CCTNS पोर्टल पर GD की ऑनलाइन एंट्री और कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया है। तो वही महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया गया। आपको बता दें जहां तैनात पुलिसकर्मियों को उत्तराखंड पुलिस ऐप और कंटेंट का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। इसमें थाने के रख रखाव, हमारे कर्मचारी किस स्थिति में रहते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी हैं, और किस तरीके से थाना जो है शिकायतों के निराकरण के लिए और जो भी योजनाएं पेंडिंग चल रही हैं उनकी योजनाओं के सफल निस्तारण के लिए किस तरीके से वर्क कर रहा है। इस सारी ही चीजों को, इनकी जो कार्य क्षमता है, इनकी जो कार्य पद्धति है, उनको परखा जाता है, उनको देखा जाता है, और अगर इसमें कोई सुधार की जरूरत है तो उनको बताया जाता है। और अगर मान लीजिए कि कोई ज्यादा कहीं पर कोई दिक्कत, परेशानी आ रही है, या हमारे पुलिस ऑफिसर स्तर पर किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसको भी देखा जाता है। तो सभी की समीक्षा की जाती है। सर, महिला जो डेस्क है, महिला
ऑफिसर्स के लिए, जो लेडी अफसर हैं उनके लिए एक अलग रूम का आज उद्घाटन के द्वारा कराया गया था। और ये एक अच्छी पहल है जिसमें माननीय सांसद यहाँ पर नरेंद्र बंसल साहब, उनके द्वारा प्रत्येक थाने में इस प्रकार से महिला डेस्क के लिए धनावंटन किया गया था, उसमें ये कार्रवाई। तो अगली खबर की रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड सरकार लगातार गायों के संरक्षण और देखभाल के लिए कार्य कर रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में गायों को बेहतर जीवन और गायों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे विभिन्न एनजीओ को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बता दें, प्रदेश की धामी सरकार लगातार गौवंश के संरक्षण और देखरेख के लिए देश में बेहतरीन कार्य कर रही है। तो वहीं देश में सबसे अधिक गायों को देने वाला शुल्क 80 रुपए प्रति गाय उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया जा रहा है। आपको बता दें, सरकार की नीतियों से गायों के संरक्षण कर रहे विभिन्न संगठनों को भी मजबूती देने के कार्य किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्राम गौ सेवक योजना प्रदेश में चलाई जा रही है। तो वहीं इस योजना के तहत शहरों में आवारा घूमने वाले गौवंशीय पशुओं को शहरों के आसपास के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्रामीण गोद ले सकते हैं और इन पशुओं को पाल सकते हैं। तो अगली खबर की रुख करेंगे, जहां हेमकुंड साहिब के कपाट आपको बता दें 25 मई को खुलेंगे। 22 मई को पंज प्यारों के नेतृत्व में पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। तो वहीं लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारे से यात्रियों के जत्थे को रवाना किया जाएगा। आपको बता दें, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा पर जाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो वहीं इस कार्यक्रम में संत समाज और शहर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। तो आपको बता दें, ऋषिकेश से हेमकुंड यात्रा का शुभारंभ होना है, जहां 22 मई को पहला जत्था रवाना किया जाएगा। वहीं पंच प्यारों के नेतृत्व में पहली यात्रा की शुरुआत होगी। आपको बता दें, तो वहीं 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे, जहां राज्यपाल और सीएम हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना करेंगे। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में भले ही हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भटाना कुछ ही मतों से सफलता पाते पाते रह गए हो, पर वह मंगलौर विधानसभा के लोगों का एहसान नहीं भूल पा रहे हैं। जब भी मौका मिलता है क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने से नहीं चूकते हैं। तो आपको बता दें, इसी क्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भटाना मंगलौर विधानसभा के गांव बरहमपुर जट पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंगलौर की जनता से उनका जन्म का रिश्ता रहा है और उपचुनाव के दौरान मंगलौर क्षेत्र की जनता का जो भरपूर प्यार उन्हें मिला है, वह उसका एहसान कभी नहीं उतार सकते। इसी के चलते वह चुनाव के बाद से मंगलौर विधानसभा के हर गांव में जाकर लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने आगामी 8 जून को मंगलौर में होने वाली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तिरंगा रैली को सफल बनाने का आह्वान भी किया है और कहा है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर तिरंगा रैली को कामयाब बनाएं। हमारा मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करने का था, लेकिन उसके बाद ऐसा कार्य हो गया जो भारत का ही नहीं, बाहर मुल्कों के लिए भी दिखाना पड़ता है। तो अब जो तिरंगा रैली हम 8 तारीख को करने का फैसला किया है, जिसमें मुख्यमंत्री जी आके उसका संचालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि विदेशों को बता दें कि हिंदुस्तान कितना एक है और वो हर तरह से गलत के लिए गलत होके तैयार है। देखिए, मैं जब आया था आपके बीच में, तब मैंने कहा था कि ये हरिद्वार जिला है और मुझे अब मेरा कोई ज़्यादा टाइम भी मेरे पास नहीं, तो मुझे यहीं से इनकी सेवा करते हुए यहाँ से जाना है और हारूं या जीतूं इनके बीच में रहूँगा और वे भगवान के भरोसे मैंने एक बात और भी कहती थी कि जो विधायक काम करेगा उससे एक काम ऊपर करो।
मंत्री जी आपका देखिए ऐसा जिनमें मेरा प्रोग्राम हुआ है उनको सबको दो, बोल मैंने सबको रखा है, जैसे जैसे प्रोग्राम होता रहेगा सबको दो। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे जहां रोड के इलाके की सबसे चर्चित इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का 162 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है। आपको बता दें जिसको लेकर सरकार से लेकर मिल मैनेजमेंट तक भुगतान दिलाने को कोई गंभीर नहीं है। किसानों का आरोप है कि इकबालपुर शुगर मिल प्रबंधन को सरकार की शय मिली हुई है, जिसके चलते चीनी मिल अपनी मनमानी कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द बकाया गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो इस मामले में गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पिछले 3 साल से बकाया गन्ना भुगतान दिलाने की कोशिश जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इकबालपुर शुगर मिल का मैनेजमेंट किसानों के हित में काम करना नहीं चाह रहा है। वहीं गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि इकबालपुर मिल का मैनेजमेंट फ्रॉड है, बकाया गन्ने का भुगतान दिलाने की कोशिश जारी है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का बड़ा संदेश दिया। आपको बता दें उत्तराखंड में पिछले 3 सालों में 150 से ज्यादा भ्रष्टाचारी कर्मचारियों अधिकारियों को जेल पहुंचाने का काम किया गया है। तो वहीं मुख्य कोषाधिकारी से लेकर IAS, IFS इंजीनियर और GST कमिश्नर लेवल के अधिकारी भी अब तक जेल भेजे जा चुके हैं। बता दें आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी विभाग की अगर शिकायत मिलती है तो उसे तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी कीमत पर प्रदेश में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि राज्य हमारा ये देवभूमि है। देवभूमि में सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी तरीके से चलनी चाहिए, पारदर्शी शासन होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। उसको लेकर ये अभियान हमने प्रारंभ किया है और ये अभियान और तेज़ गति से चलेगा। जहाँ भी शिकायतें मिलेगी उसके लिए हमने 1064 टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की है। हमारा जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसको जो है रिवॉल्विंग फंड भी हमने उपलब्ध कराया है, जिससे कि उनको अपने काम करने में किसी प्रकार की परेशानियां न हो। आगे जहां भी और इस प्रकार की शिकायतें आएंगी, जनता की अपेक्षाएं जहां हैं वहां पर इस प्रकार की कार्रवाइयां तेजी से होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और काफ़ी सारी कार्रवाई जो है इसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही है। और कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि इस कार्रवाई को सतत रूप से जारी रखा जाए और इसमें और तेजी और इसको और प्रभावी ढंग से किया जाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां देहरादून में सेवा योजन कार्यालय की ओर से 31 मई 2025 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें यह क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में आयोजित होगा। तो वहीं इस बृहद रोजगार मेले में 38 कंपनियां आएंगी जो लगभग 1000 वैकेंसी के लिए योग्य पात्रों का चयन करेंगी। तो वहीं क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी देहरादून मुकेश प्रसाद ने बताया है कि जो भी रोजगार मेले में भाग लेना चाहते हैं वो अभ्यर्थी क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय देहरादून में आकर पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ ही दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थी ये रोजगार मेले के दिन भी पंजीकरण कर सकते हैं। मैं मुकेश प्रसाद रोयाल सेवा योजना अधिकारी क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में कार्यरत हूँ और क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से दिनांक 31 मई 2025 को एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 38 कंपनियों के द्वारा लगभग 1000 पदों के लिए विभिन्न सेक्टर के जो कंपनियां हैं उनके लिए नियुक्ति दी जाएंगी। इस रोजगार मेले में कक्षा 8 से लेकर के और स्नातकोत्तर तक के सभी शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण योग्यता रखने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अवसर उपलब्ध। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।